Morning students. Today we will discuss about the current electricity and topic for the today is Kirchhoff's rules. When electrical circuit is a more complex, consisting the more than two EMF cells, EMF of a cell, resistances, and circuit is a more complex. In that case, use of the Ohm's law, it is a very difficult. In that case, we use the Kirchhoff's law to simplify the circuit. So these rules are used to find out the potential current through the each branch or each network, or in a Ohm's law same thing was there, but in a complex circuit the use of the Ohm's law, and to simplify the circuit and find the current or potential across the any part of the circuit, it is a very difficult. So this is a very simplified way of the finding the potential and current using the Kirchhoff's law. There are the two rules. One is first is known as a junction rule. And second is this is a loop rule, or this is a closed loop rule, or this also known as a potential rule, or this is a current rule. In a junction rule, sum of the current across the junction is equal to algebraic sum of the current across the junction is a 0. Algebraic current or algebraic sum of the current across junction is 0. So this junction means this point where the large number of or one or more branches of the route of the current. Suppose this is a current passes through this branch. I1 is a incoming current, I2 is a going out away from the junction. Suppose this is a O, this point is a junction. This is also going away, this is I3, and I4 is a inward. So which current coming toward the junction and some currents going away from the junction. So this form this type of the point where the number of branches in the current coming or going out, this known as a junction. So algebraic sum of the junction, matlab the summation of the I equal to summation of I equal to the summation I equal to 0. So the I1 plus I2 plus I3 plus I4 equal to 0. But here we have to use some rules to simplify this circuit. So incoming current, matlab current which is coming to the junction, I1 is coming to the junction, taken as a positive. The sign convention used here. I4 is also coming to the junction, so it is taken as a positive. I am writing it in a red color. This is a positive. And current going away from the junction, जो current junction से बाहर जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेना है. तो इसके लिए यहाँ सिंबल आएगा माइनस और ये माइनस. सो द इक्वेशन बन गया दिस I1 minus I2 minus I3 plus this I4 equal to 0. Incoming current is taken as a positive, outgoing current is taken as a negative. So the sum of the current across the junction equal to 0. This is the first rule. Or in this case, this rule, junction rule, it is based on the principle that the conservation of charges.
the charges, the current means flow of the charge. There is nothing is remain in the junction. यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, जो करंट आता है वो चार्जेस दे आर फ्लो आउट, जितना आता है मीन्स नथिंग इज ए kept at the junction or remain at the junction. Whatever charges come to the junction, they are passes away to from the junction. Means therefore sum of the current across the junction equal to 0. This is the first rule, and these rules are used to simplify the electrical network using the using this Kirchhoff's laws. This first rule is a very important. So ye the second rule, in a closed loop, in a any closed loop of electrical network, in a any closed loop of electrical network, any closed loop of a electrical network, sum of potential difference and sum of the potential difference and EMF is equal to 0. Sum of the potential difference and current equal to 0. Potential difference means this is according to Ohm's law, V is equal to IR, मतलब current into the resistance. This is the potential difference. And EMF, sum of the EMF मतलब number of इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे EMF सोर्सेस, कितना बैटरीज है और कितना सेल्स है सर्किट में, वो इसका सम जो है वो दिस इक्वल टू 0. सो दिस इज ए सम ऑफ द पोटेंशियल V और प्लस EMF in a circuit, this equal to 0. Here also the sign convention, the sign convention यहाँ क्या यूज़ किया for this day, the sign convention, incoming I positive or outgoing current is a negative. This is the sign convention. और यहाँ sign convention, it is a use in a closed loop. In a closed loop, it need to indicate the direction of the current. When direction of current is indicated, then when we are going to in the direction of current, it's treated as a fall in potential. In the direction of the current, if there is any resistance in the direction of current, this is the direction of current or this is the resistance. So potential difference equal to, in the direction of the current, this is the direction of current, potential difference is taken as a negative और इट इज ट्रीटेड एज ए फॉल इन पोटेंशियल. क्या लेना है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट से जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाता है, तो क्या करना है, पोटेंशियल नेगेटिव लेना है. और कैसे एक्चुअली किसका डायरेक्शन करंट, ये सब हम एक न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लो ठीक से. और व्हेन वी आर मूविंग इन द अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हमारा ये लूप में जब मूव करते हैं तब ये डायरेक्शन में जा रहा है और करंट ये डायरेक्शन में है, so potential difference is treated as a rise in potential. So potential difference equal to is taken as a positive IR. क्या लेंगे, this is a positive I into R. अभी डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ये न्यूमेरिक में पढ़ेंगे. खाली ये दिस इज द रेजिस्टेंस, अगर ये करंट का डायरेक्शन और हम क्लोज लूप में इस डायरेक्शन से जाते हैं, ये डायरेक्शन से, तो इट इज़ ए ट्रीटेड एज ए इस डायरेक्शन में जा रही, दिस इज द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ट्रीटेड एज ए फॉल इन पोटेंशियल और इट टेकन एज ए नेगेटिव. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन से मूव हो रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव. यहाँ लिख रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
in direction of current, or it is a opposite to the this case, opposite to current direction I, opposite to the direction of current. ये वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन अगर प्लस माइनस पता नहीं तो इसीलिए ये ठीक से समझना है. और when EMF source, when there is a EMF source means this is the symbol for the EMF source. ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है लूप में, नेगेटिव टू पॉजिटिव. व्हेन नेगेटिव टू पॉजिटिव इज टेकन एज ए EMF is पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइज इन पोटेंशियल कंसिडर करना है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है. और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, in the opposite direction, positive to negative, the EMF taken as is negative. क्या लेना है, लो डिक्रीज इन पोटेंशियल ट्रीट करो और इसको क्या करना है, नेगेटिव लेना है. मतलब जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे राइज इन पोटेंशियल, सो पॉजिटिव लेना है. और ये डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो इट इज टेकन एज ए नेगेटिव. कंसिडर इज ए दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू द नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव. इस तरीके से ट्रीट करना है. तो ये रूल्स हैं, फिर से एक बार समझ लो ठीक से. अगर ये अच्छा तरह समझ गए तो ये न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है. और कितना भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो हम इजीली इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले लूप समझ लो, रूल्स क्या है. फर्स्ट रूल दिस नोन एज जंक्शन रूल. अगर कोई भी जंक्शन है जहाँ एक से ज़्यादा करंट ब्रांचेस हैं तो उसको बोलेंगे जंक्शन. तो वहाँ क्या लेना है, इनकमिंग करंट पॉजिटिव लेना है, आउटगोइंग करंट नेगेटिव लेना है, एंड सम ऑफ द करंट इक्वल टू 0. तो साइन कन्वेंशन, जंक्शन की तरफ आने वाला करंट क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, और जंक्शन से बाहर जाने वाला करंट नेगेटिव लेना है. तो इससे ये ऐसा यूज़ करना है. क्लोज लूप, ये सेकंड दिस नोन एज लूप रूल या दिस नोन एज ए पोटेंशियल डिफरेंस या सम ऑफ द पोटेंशियल रूल. इन एनी क्लोज लूप एनी क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कोई भी एक क्लोज लूप सिलेक्ट करना है. Sum of the potential and EMF is equal to 0. This is sum of a summation of a potential plus EMF equal to 0. मैंने यहाँ सिंबॉलिक लिखा है. और यहाँ in the direction of current, करंट का डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो. अगर करंट का डायरेक्शन ये सर्किट में एक्सप्लेन किया तो डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या करना है, निगेटिव लेना है. और इट इज ट्रीटेड एज फॉल इन पोटेंशियल जैसे आगे जाएगा यूज़ होता जाएगा और डिक्रीज होगा. ऐसा एक कंसेप्ट समझ लेना है और ध्यान में रखना है. करंट का उल्टा डायरेक्शन में जाता है तो पोटेंशियल कितना पॉजिटिव लेना है, और वो कितना पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR होता है. और इसी तरीके से डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, बैटरी कोई भी EMF सोर्स आता है और इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है. और पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे तो क्या करना है, नेगेटिव लेना है. बस ये क्लियर पिक्चर हो गया. अब इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा कुछ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो करंट फाइंड करने के लिए इस तरीके से. तो चलो पहले न्यूमेरिकल देखते हैं कि फर्स्ट पहला न्यूमेरिकल आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. दिस इज यूज द किरचॉफ्स लॉ, यूज Kirchhoff's law or Kirchhoff's rules to write the expression expressions of I1, I2 and I3 as shown in figure. तो ये नेटवर्क में दिस इज द EMF ऑफ सोर्स. यहाँ एक रेजिस्टेंस है और
इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है दिस R1 इक्वल टू 4 ओहम और बैटरी का EMF है E1 इक्वल टू 2 वोल्ट। इस तरीके से उसके बाद दूसरा सोर्स है यहाँ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया है और ये R2 दिस इक्वल टू 3 ओहम, ये 3 ओहम का है और EMF दिस E2 इक्वल टू 1 वोल्ट। तीसरा और एक सोर्स है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, इस तरीके से 3 सोर्स कनेक्ट किया। ये सबका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये कैसे है सीरीज में, ये पैरेलल में है सभी। और E3 इक्वल टू 4 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 दिस इक्वल टू 2 ओहम। इस तरीके का ये सर्किट डायग्राम है। अब इसका हमें इम्पोर्टेंट क्या है, करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। करंट का डायरेक्शन के लिए वोल्ट में आएगा। ये करंट का डायरेक्शन, इस सबसे बड़ा EMF कौन है 4 वोल्ट, ये छोटा है 1 वोल्ट और ये कितना 2 वोल्ट, मतलब ये दिस EMF इज ए स्मॉलर देन दिस। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ से इसको इंडिकेट करता हूँ मैं। E3 लिया तो इसको ले लो I3, यहाँ जाएगा, फिर ये छोटा EMF हो, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा I2 और यहाँ से कितना I1, यहाँ से I1। अब यहाँ से करंट का डायरेक्शन जितना ये सेल ने दिया है, कितना दिया है यहाँ से सेल ने दिया I3, तो इसके अंदर ये निगेटिव टर्मिनल को भी I3 ही दिखाना है। यहाँ से कितना है I2, लेकिन ये इनकमिंग है तो ये यहाँ से I2 बाहर जाएगा और यहाँ से I1 बाहर जाएगा। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम। अब इसको नाम देते हैं A B C D E और ये F। तो हमें क्या करना है, अब समझ लो, अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो भी बाकी सभी समझ में आते हैं अच्छी तरह से। अब क्या लिखा है, यूज द किरचॉफ्स रूल्स, ये दोनों रूल्स यूज करना है। राइट द एक्सप्रेशन of I1, I2 and I3. Write the expression of I1, I2 and I3 by using the Kirchhoff's rules. तो यहाँ 3 सोर्सेस है EMF E1, E2 and E3, ये पैरेलल कनेक्ट किया और वो R1, R2 and R3 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये इस तरीके से कनेक्ट किया है। ओके, और करंट का डायरेक्शन मान लो इट इज़ ए गिवन, सभी ये दिया हुआ है। तो हमें लिखना है, इसके एक्सप्रेशंस लिखना है। अब चलो पहला रूल यहाँ यूज़ करते हैं। ये जंक्शन हो गया, देखो यहाँ से एक करंट इनकमिंग करंट है कितना I3, आउटगोइंग कितना है I2, यहाँ से कितना जा रहा है ऊपर लिखा है मैंने I1। सो दिस ए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, पहला किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, दिस नोन एज ए जंक्शन रूल, जंक्शन रूल एट पॉइंट कहाँ C पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट C पर जंक्शन रूल यूज़ करेंगे। तो जंक्शन रूल में इनकमिंग करंट I3 पॉजिटिव और आउटगोइंग कितना है I1 और दूसरा क्या है I2 इक्वल टू 0। इनकमिंग का मतलब जंक्शन की तरफ आने वाला करंट मैंने पॉजिटिव लिया इस इक्वेशन के रूल के मुताबिक, और यहाँ से ये जंक्शन है, इससे ये करंट बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, जंक्शन से अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है। तो क्या करना है, नेगेटिव लेना है। तो ये दो इक्वेशन बन गया I3 इक्वल टू, इस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा I1 प्लस ये आएगा I2। दिस जस्ट पुट इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, अब ये इम्पोर्टेंट है। पहला यहाँ फर्स्ट रूल यूज़ करके मैंने यहाँ इक्वेशन लिखा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, पहला ये लूप सेलेक्ट करना है, सेकंड रूल कैसे अप्लाई करना है, ये क्लोज लूप, यानी क्लोज लूप। सेकंड में यहाँ लिख रहा हूँ यानी क्लोज लूप। कौन सा क्लोज लूप लेना है, A B D C A, यानी क्लोज लूप A B D इज एट दिस पॉइंट, D दे उसके बाद आता है C एंड देन A समझ लो ठीक से, A B
D, C and then again come to the A. This is a complete closed loop. ये loop हो गया complete closed loop. अब यहाँ हमें डायरेक्शन कैसे जा रहा है, A to B जा रहा है, B to D जा रहा है, D to C जा रहा है, C से A जा रहा है, क्लोज लूप कंप्लीट हो। ये पाथ फॉलो करके हमें ये इसका इक्वेशन लिखना है। चलो इसका पाथ फॉलो करते हैं। A से B जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमें क्या लेना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो EMF क्या लेना है, कितना है, -2। EMF क्या आएगा, -2, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यहाँ लिखा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव। उसके बाद ये डायरेक्शन ऑफ करंट I1, ऐसा ही है I1, ये I1 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा में जाते हैं। यहाँ देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल क्या लिखना है, माइनस, अगेन यहाँ -4I1, पोटेंशियल मतलब दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR। I कितना, I1 की, या I कितना है I1, R कितना है 4, सो दोनों का प्रोडक्ट और डायरेक्शन ये। उसके बाद हमने यहाँ से जाकर ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, देखो ये D to C, करंट का अपोजिट क्या लेना है, प्लस, तो कितना है 3I2। उसके बाद निगेटिव ये अपो टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो क्या करना है, प्लस लेना है, +1। फिर यहाँ से कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है, फिर ये इक्वल टू 0। अगर समझ में नहीं आए तो स्टॉप करो, थोड़ा पीछे ले लो, वीडियो पीछे करो और समझ लो इसको किस तरीके से यूज़ किया है। क्लियरली बताया, क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, इक्वेशन -4I1 + 3I2 और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, बराबर है, -2 + 1 -1, सो -4I1 + 3I2 इक्वल टू, ये इस साइड जाता है, इक्वल टू साइन का राइट साइड जाएगा तो इट बिकम्स ए प्लस। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 लिखा, ये क्लोज लूप लेकर। अब तीसरा क्लोज लूप, ये स्टॉप करके यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको क्लीन नहीं कर रहा हूँ। हमें कितना करंट से 3 है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो ये थर्ड लूप यहाँ मैं यूज़ करूँगी, ये स्पेस यूज़ करते हैं, हाँ ये वाला, ठीक है। अभी थर्ड इक्वेशन, यानी क्लोज लूप, एक लूप सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा लेंगे, एक बाहर का लेंगे या अंदर का लेंगे, चलो अंदर का एक लिया तो एक बाहर का लेंगे, यानी लूप ABFEA, यानी A से B, उसके बाद B से F, इसी पाथ में F, उसके बाद कहाँ जाएगा E, ये E है, E के बाद A, ये क्लोज लूप मैंने सेलेक्ट किया, ये बाहर का, इस तरीके से। अब A से स्टार्ट करके A to B जाएंगे, B to से B to F जाएंगे, F से E जाएंगे, E से A पे आएंगे। ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ द लूप। अब इसको यूज़ करेंगे कैसा, इक्वेशन देखो, यहाँ से जाते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव क्या लेना है, निगेटिव, कितना लेना है, -2 वोल्ट। उसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेना है, माइनस, कितना है पोटेंशियल, V इक्वल टू IR, तो ये आएगा 4I1। फिर यहाँ से ये लूप, यहाँ से कोई कंपोनेंट नहीं है, फिर यहाँ आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के दिशा में जा रहा है, फिर क्या लेना है, -2 और करंट कितना है, I3, ये करंट और ये। फिर यहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, EMF क्या लेना है, निगेटिव ये टू पॉजिटिव, EMF क्या लेना है, पॉजिटिव, सही तो सही, पॉजिटिव, कितना 4 वोल्ट। और यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ कंपोनेंट नहीं है, इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, इजीली हम इक्वेशन बना सकते हैं। अगर अच्छी तरह से एक इक्वेशन अगर ठीक से समझ गए तो कोई भी लूप सिलेक्शन, कोई भी इक्वेशन लिखना, करंट फाइंड करना, पोटेंशियल निकालना इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ देखो
4I1 -2I3 और ये दोनों का आएगा +2 = 0। सभी को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इट ऑल दिस 2, तो ये बन जाएगा 4, ये -2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने के बाद लिखेंगे -2I1 -3 2 × 3 और ये उस साइड जाएगा इक्वल टू को साइन के राइट साइड, तो ये बिकम से माइनस। कितने से डिवाइड किया मैंने? 2 से। 2 से डिवाइड किया दिया 2 नहीं आएगा, ये क्या यहाँ कितना आएगा 1 और सभी माइनस है, तो फाइनल इक्वेशन आएगा 2I1 + I3 = 1, क्योंकि सभी माइनस साइन कैंसिल किए और इक्वेशन बन गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो दिस इज द I2 I1 + 3 = 1 दूसरा इक्वेशन, और तीसरा इस तरीके से इक्वेशन हम बना सकते हैं। और जब I1 I2 का वैल्यू फाइंड करना है तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। आगे किस में पढ़ेंगे, तो ये दोबारा ध्यान दीजिए, एक बार वीडियो स्टॉप करके लिख के एक बार रिवाइज कर दीजिए कि किस तरीके से हम इसको रूल को यूज़ करना है, इसका साइन कन्वेंशन, इसका साइन कन्वेंशन क्लियरली अच्छी तरह से एक बार दिमाग में हो गया, तो हम आगे का कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हम इजीली कर सकते हैं। और आलस मत करो, इसको अच्छी तरह से नोट करो अपना एक कॉपी के ऊपर या पेपर के ऊपर, एंड देन यूज़ फॉर द डिफरेंट इक्वेशंस। वन मोर न्यूमेरिकल में इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ, जिसमें हम I1 I2 और I3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो, अभी ये ध्यान में आया होगा, तो इसको मिटा देते हैं, साइन कन्वेंशन वाला या साइड में लिखते हैं, फिर तुम्हें यूज़ करना है, हमें तो इजीली साइड में अवेलेबल रहेगा, तो यही इक्वेशन हम लिखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल सेकंड, दूसरा apply the Kirchhoff's rules in the loop. Okay, one more question. This is it. Use question number 2. Use Kirchhoff's rules, this also known as the laws, to determine the value of current I1, to determine value of current I1 in the given electrical circuit, in the given electrical circuit। क्या दिया है? तो दिस द गिवन I1 का वैल्यू फाइंड करना है हमें, और ये एक इक्वेशन, एक सर्किट डायग्राम दिया है। इसमें यहाँ एक रेजिस्टेंस है और इसका वैल्यू दिया है 20 ओम, और इसमें से करंट जाता है I1 लिखा है। दूसरा एक नेटवर्क की यहाँ एक लाइन है, दूसरी ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, और ये दोनों कनेक्टेड है। इस तरीके से, और एक है इसमें, दिस इज द सोर्स ऑफ EMF, इसका यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया है। पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ जो रेजिस्टेंस है I3, इसका बैटरी है 40 वोल्ट, ये है 80 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस दिया 20 ओम, और ये जो यहाँ मैंने इसको उल्टा लिखा, इसको सीधे, दिस इज द प्लस, नहीं दिस इज द माइनस, और ये प्लस इसका, इस तरीके से। और I3 करंट का डायरेक्शन यहाँ से I3, यहाँ से I2, और यहाँ से I1 I2 I3, और ये एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है
रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 2 ओम, दिस इज ए 2 ओम। हम डायग्राम को नाम देते हैं ए बी सी डी ई और ये एफ। चलो अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछ यूज द किरचॉफ्स रूल्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करंट I1 इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसका I1 का वैल्यू फाइंड करना है। किसका? I1 का। आसान है। अब हमने पहले लेवलिंग किया इसको, करंट का डायरेक्शन पता है, यहाँ से कितना जा रहा है I3, यहाँ से कितना जा रहा है I2, और यहाँ जाके यहाँ से फिर I1 है, और यहाँ से कितना जाएगा, ये I1 है तो यहाँ भी क्या आएगा I1, और यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से कितना है I2। इसका मतलब ये बैटरी कितना दिया I2। जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है उतना नेगेटिव टर्मिनल को करंट होता है, जितना दिया उतना उसी बैटरी का है। तो इस तरीके से अब मिल गया। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं। चलो यहाँ जंक्शन हो गया, यहाँ देखो पॉइंट सी के ऊपर। तो पहला जंक्शन रूल, जंक्शन रूल क्या है? जंक्शन रूल सम ऑफ द करंट, द इनकमिंग करंट इज टेकन एज ए पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट इज टेकन एज ए नेगेटिव। इनकमिंग कौन है I3, और ये प्लस माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो ये हो गया इक्वेशन I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू, और ये इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दिस इज जंक्शन, सिंपल, इनकमिंग करंट पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव। ओके, दैट क्लियर। अब हम एक लूप सिलेक्ट करते हैं इसका, इन ए क्लोज लूप। कौन सा लूप लेंगे बोलो? ए बी डी सी, ए पहला लूप लेते हैं। ए बी डी, ये डी हो गया, सी, और उसके बाद ए, यहाँ से ये लूप हो गए, ये ऐसा ये लूप। ए टू बी जाएंगे तो हम कैसे जा रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट यह दिखा है, तो क्या लेना है? माइनस कितना, इस ये दोनों का पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर होता है। I कितना? I1 है, और करंट की ये रेजिस्टेंस कितना है? 20 I1। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस, यहाँ से देखो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, राइज इन पोटेंशियल इट इज़ क्या लेना है? 40 प्लस, निगेटिव टू पॉजिटिव। फिर डायरेक्शन ऑफ करंट ले जा रहे हैं माइनस, कितना? 2 इंटू I3, 2I3 इक्वल टू 0, जाके आगे कोई नहीं इक्वल। सिंपल एक इक्वेशन, यहाँ से ऐसा गए ऐसा। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस, निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस, निगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो गया, ये सब प्लस। उसके बाद यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन में नेगेटिव, तो ये मैंने यहाँ लिखा। तो इसके लिखेंगे ठीक से, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा -10 I1 माइनस I3 इक्वल टू, कितने से डिवाइड किया? 2 से, तो ये हो जाएगा -20। इस साइड गया तो ये माइनस बनेगा। 2 सबका इक्वेशन निकाल देते हैं तो ये 10 I1 प्लस I3 इक्वल टू प्लस 20, इक्वेशन नंबर 2। फिर से चेक करो, मैंने 2 से डिवाइड किया, ये इस टर्म इक्वल टू का साइन का राइट साइड जाएगा तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, सभी माइनस है प्लस हो गया। सबको 2 से डिवाइड किया तो ये 10 हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया 20 हो गया, इसको 2 से I3, तो इक्वेशन 2 हो गया। और तीसरा एक लूप लेते हैं, कोई भी एक लेने, क्लोज लूप, इन्हें क्लोज लूप, एक लूप सिलेक्ट करना है। कौन सा लूप सिलेक्ट करते हैं? देखो कोई भी एक ले लेंगे, हम यहाँ से लेते हैं C D F E और ये C, ये लूप लिया हमने, ये वाला। C to G जाएंगे, इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, C to D अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द करंट इज I3 और ये रेजिस्टेंस इज 2 ओम, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए प्लस, लिखा है।
दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस इसका C2D जा रहे हैं 2I3, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं -40, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव। उसके बाद यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द करंट का डायरेक्शन, इसका अपोजिट, यह आएगा +20I2 और यहाँ फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं -80 = 0, या इसके आगे कोई डिवाइस नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बराबर आएगा, चेक करो एक बार। ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है सेल के लिए माइनस, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है माइनस, सो = 0। तो ये हो गया 20I2 + 2I3 और ये दोनों का लिखेंगे तो ये होता है 120 और इस साइड जाने के बाद दिस इज 120। 2 से डिवाइड करो 10I2 + I3 = 120। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ये इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करते, 1 और 3, दिस इज 3, 2 ये I1 I3 है, ये I2 I3 है, तो I3 को या किसी को एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ये I1 I3 है और ये I2 और I3 है, इसमें 2 नहीं है, 2 को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ 2 को एलिमिनेट करेंगे या I3 रखेंगे तो इसमें 2 को एलिमिनेट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन, इसका ही यूज़ करके। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I2, तो ये I2 = I3 minus I1, so this is 10 I3 minus I1, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, प्लस I3 = 120, so 10 I3 minus 10 I1 plus I3 = 120। अब ये I3 कितना होता है देखो, माइनस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आएगा -10 I1 और ये हो गया प्लस 11 I3 = 120, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, वेरिएबल I1 I3 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं आगे, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके I1 एंड I2 का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। देखो ये दोनों इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, 10 I1 प्लस I3 = 20। कौन सा इक्वेशन लिखा, इक्वेशन नंबर 2, और दूसरा कितना है -10 I1 प्लस 11 I3 = 120। दोनों का ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 I3 = 140, I3 = 140 डिवाइड बाई 12। इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, ये हो गया 70, 3 और ये हो गया कितना आएगा, अच्छा हाँ 2 से डिवाइड किया तो 6 बन गया, ये 70 हो गया और 30/2 से 70, मतलब ये हो गया 35 डिवाइड बाई 3 एम्पियर। लेकिन हमें पूछा है, क्या पूछा है, I1 पूछा है, तो हम ये I3 नहीं चाहिए, तो इसके भी यही किसी इक्वेशन में रखेंगे। 10 I1 प्लस I3 कितना है 35/3, इसमें लिखा = 20, सो 10 I1 = 20 माइनस 35 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 60 माइनस 35 डिवाइड बाई 3। इससे 35 से ये 60 माइनस करो तो जैसे 5 और एक 4 25 आएगा डिवाइड बाई 3, 10 I1 = देन
25 डिवाइड बाई ये 10 इंटू 3, तो दिस इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 30 एम्पियर। कितना करंट आएगा I1? 25 डिवाइड बाई 30 एम्पियर। सो इस तरीके से सिंपल ये इक्वेशन सॉल्व करना है, अलग अलग इक्वेशन बनाना है, दोनों रूल यूज़ करना है। चलो ये तुम खुद एक क्वेश्चन के लिए ट्राई करो, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम्हें, तो हाउ टू सॉल्व इट, और इसी दो इक्वेशन का यूज़ करो और इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये सर्किट डायग्राम है, इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल across 5 ohm resistance, 5 ohm resistor in a given circuit. This is the question number 3. इसके लिए तुम ट्राई करेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक EMF है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सोर्स ऑफ EMF यहाँ है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका EMF है पहले का 1.5 वोल्ट, दिस इज द E1 इक्वल टू, E2 इक्वल टू इसका है 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिस इसका R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, और ये कनेक्टेड है अक्रॉस दी एक्स्ट्रा दी अगेन वन मोर रेजिस्टेंस 5 ओम। तो हमें क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर। चलो मैं करंट का डायरेक्शन बताता हूँ कैसे। इसमें से सपोज मान लो I1 जाएगा, इसमें से I2 जाएगा, और इस थ्रू यहाँ से I1 प्लस I2 जाएगा। सिंपल सर्किट है, यहाँ से जाएगा तो ये I1 हो गया, यहाँ से I2 गया तो यहाँ से भी I2। सो इस तरीके से I2 I1 का वैल्यू फाइंड करो, और पोटेंशियल फाइंड करना है तो V इक्वल टू IR होता है। तो I कितना है, I1 प्लस I2 है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, ये निकालेंगे तो तुम्हें मिलेगा इसका वैल्यू। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, और आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में भेज देना, और क्या आता है सिंपल एक लॉ यूज़ करके तुम पहले इसको तो क्वेश्चन का ये इसको ये ABCD लिखो, ABCD, और इस ब्रांच को यहाँ E और F लिखते हैं। 2 इक्वेशन बनाओ और इसको सॉल्व करो, और इसमें से करंट मिलने के बाद पोटेंशियल फाइंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।